Hello children, in this lecture we will discuss the preparation of aliphatic aldehydes and ketones. So the first preparation is from alcohol. Okay students, so you all know that alcohol on oxidation produce particular aldehyde or ketone. Okay students, so aldehyde is given by primary alcohol and ketone is formed by secondary alcohol. Okay, so primary alcohol like CH3CH2OH, when this is oxidized in the presence of acidified K2Cr2O7, so K2Cr2O7 acidified, then this primary alcohol will be oxidized in the form of aldehyde plus H2O. Okay students, so to balance this reaction we can add here nascent oxygen. So this alcohol is oxidized in the presence of acidified K2Cr2O7 to form aldehyde and water. So this is ethanol. Ethanol is forming ethanol after oxidation. Okay, so the number of carbon atoms in alcohol is 2, and here a number of carbon atoms are also 2. So just simple oxidation is taking place, no change in the number of carbon atoms in aldehyde. Okay students, so this is the oxidation. Now if we use this reagent for a prolonged time, then this aldehyde will get further oxidized in the form of acid. Okay students, so that is why we require here controlled oxidation of alcohol, and we have to take out this aldehyde from the medium time to time. Okay, तो इसको बाहर निकालते रहेंगे, अदरवाइज ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल. तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे. इसी तरह से अगर सेकेंडरी अल्कोहल कोई हम लेते हैं, लाइक दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल. व्हाई दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल? बिकॉज दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन. Why this carbon is secondary carbon? Because this carbon is attached with directly to carbon. So this will be secondary carbon, and this carbon is having OH group. That is why this alcoholic group is secondary, and such alcohol which is having secondary alcoholic group will be known as secondary alcohol. So when this alcohol, secondary alcohol, will be oxidized in the presence of same reagent, acidified K2Cr2O7, then you will get related ketone with same number of carbon atoms plus H2O. Okay students, so primary alcohol after oxidation form aldehyde, and secondary alcohol form ketone. So this was the first preparation. Now second preparation from carboxylic acid. So in this preparation we will use carboxylic acid, but not carboxylic acid indirectly. We will use this carboxylic acid in the form of their calcium salt. Okay, so this carboxylic acid in the form of their calcium salt. Okay, so keep in your mind that calcium formate, calcium salt, calcium formate
under this reaction will form formaldehyde. Calcium formate with this reaction, under this reaction will form formaldehyde, and calcium salt other than calcium formate, calcium salt other than calcium formate alone will form ketone. Okay students, then calcium salt other than calcium formate plus calcium formate together form an aldehyde which is different than formaldehyde. Okay, so mixture of calcium formate and calcium salt of any other acid together will form aldehyde which is having a particular alkyl group. Okay, and this alkyl group will be depend upon the alkyl group which is present here. Okay students, so now one point to keep in your mind, that to form aldehyde you have to use always calcium formate. Okay, कैल्शियम फॉर्मेट को यूज़ करना ही करना है, क्योंकि एल्डिहाइड का जो CHO ग्रुप है वो फॉर्मेट से ही आना है एल्डिहाइड में। तो अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो हमने कैल्शियम फॉर्मेट को सिंपली हीट कर लिया केवल, है ना। इस हीटिंग को हम ड्राई डिस्टिलेशन कहते हैं। तो जब किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे, जिसे हम ड्राई डिस्टिलेशन भी कह रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो जब हम किसी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो हीट करने पर कैल्शियम फॉर्मेट अगर हीट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा किसी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो कीटोन मिलेगा, और ये कीटोन कैसा होगा, सिंपल या सिमेट्रिकल होगा, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन। ओके, मींस इसके दोनों जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे। फिर अगर हमें ऐसा एल्डिहाइड बनाना है जो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा हो, तो उस एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए हमें कैल्शियम फॉर्मेट और किसी दूसरे कैल्शियम सॉल्ट को हीट करना पड़ेगा ड्राई डिस्टिलेशन के लिए, ठीक है बच्चों। और अगर हमें मिक्स्ड कीटोन फॉर्म करना है, मिक्स कीटोन, तो मिक्स कीटोन के बेसिस पर रिलेटेड एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट को टुगेदर हीट करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन भी मिलेगा जो मिक्स कीटोन होगा। जो क्या होगा बच्चों, मिक्स कीटोन होगा। तो इसमें जो मिक्स कीटोन में जो R और R' हैं ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे जो कीटोन बनेगा वो सिंपल कीटोन होगा, जिसके दोनों R ग्रुप जो है ना वो सेम होंगे, ये डिफरेंस होगा, ठीक है बच्चों। तो अब इस बात को हम लोग एक एग्जांपल के हेल्प से क्लियर करेंगे कैसे हमें बनाना है। तो हमें इस रिएक्शन को ड्राई डिस्टिलेशन कह रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट जो हैं वो ड्राई डिस्टिलेशन पर रिलेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स देते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अब। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, केवल फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। तो हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस Ca, और इसको जस्ट हीट कर देंगे ये, तो हमें मिल जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCO प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमें जो है ना
कोई पर्टिकुलर कीटोन बनाना है, सपोज़ आपको बनाना है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट यहाँ लेंगे। ओके बच्चों, तो हम कौन सा कैल्शियम सॉल्ट लेंगे? कैल्शियम एसीटेट को, कैल्शियम एसीटेट ले लेंगे, CH3COO2Ca, कैल्शियम एसीटेट। और जब इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें एसीटोन मिलेगा, प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर सिंपल कीटोन बनाने के लिए हमने क्या किया, जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है उसके बेसिस पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट ले लिया। और चूँकि ये 2 पोर्शन इसके प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमें 2 सेम एल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं थर्ड। अब अगर हमें मान लीजिए कि कोई मिक्स्ड कीटोन बनाना है, सपोज़ हमें बनाना है CH3COCH2CH3, ये हमें फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस पर बेस्ड जो है ना, इस कीटोन के अल्काइल ग्रुप्स पर बेस्ड कैल्शियम सॉल्ट यहाँ लेंगे। और अब हमें 2 डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट लेने पड़ेंगे। तो एक कैल्शियम सॉल्ट जो है ना वो इस अल्काइल ग्रुप पर बेस करेगा, यानी कि CH3COO2Ca, प्लस दूसरा इस पर बेस करेगा, यानी कि CH3CH2COO2Ca, ठीक है बच्चों। और जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे यानी हीट करेंगे, तो अब हमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स, जब एक मॉलिक्यूल ले रहे थे कैल्शियम सॉल्ट का, तो एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मिल रहा था हमें, मेन प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल। और यहाँ पर चूँकि हम अभी 2 कैल्शियम सॉल्ट मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें 2 ये मिलेंगे, प्लस 2 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे, 2 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये हमारा हो गया प्रिपरेशन। तो मिक्स कीटोन्स को फॉर्म करने के लिए हमने कीटोन्स के अल्काइल ग्रुप के बेसिस पर पर्टिकुलर कैल्शियम सॉल्ट्स ले लिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है कोई पर्टिकुलर, जैसे कि हमें बनाना है CH3CHO, तो इसमें ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, एक कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे CH3COOCA, प्लस चूँकि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें कैल्शियम फॉर्मेट तो लेना ही पड़ेगा। तो अब कैल्शियम फॉर्मेट लिख लेते हैं, HCOO2Ca। अब जब इन दोनों को हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमें 2 मॉलिक्यूल्स इसके मिलेंगे, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2CaCO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन के बेसिस पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट को डिसाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से हम सिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, फॉर्मल्डिहाइड या रिलेटेड कोई भी अदर एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट के बेसिस पर पर्टिकुलर कैल्शियम सॉल्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।